Hello students, in this session we'll try to understand how to make this kind of program. This kind of means the program is saying that enter your name and marks of 10 subject and print their sum and average. ये प्रोग्राम कह रहा है कि आपको अपना नाम और अपना 5 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट में जो नंबर आया है वो डालना है, इनपुट करना है और ये आपको प्रोग्राम जो है उसको जोड़ के बताएगा कि टोटल आपका कितना है और एवरेज भी बताएगा कितना है। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको दो तरीकों से बनाना सिखलाऊंगा। तो मैंने पहला तरीका अपनाया है। इसमें हमने नाम इनपुट नहीं कराया है, चाहे तो नाम भी इनपुट करा सकते हैं। इनपुट एंटर योर नेम ऐसा लिख दीजिए और उसके बाद इसे एनएम डॉलर याद रहे। और ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको अदर देन नंबर्स, नंबर के अलावे कोई नाम, पता या वैसा कुछ भी इनपुट कराना है जिसमें अक्षरों का इस्तेमाल हो, कैरेक्टर्स आर यूज्ड, in that case we make variables like nm is the name of variable here, but the dollar mark says that this is a string type of data. This contains characters and all, letters are there, symbols are there. So if you're using other than numbers, then we have to use this dollar sign with the variable name. Then it can be used for inputting a name, address, or anything of such kind. So then what I'm doing, sit carefully. Input enter marks of subject 1, and that's going to S1 variable. Enter marks of subject 2, that is going to S2, and like 3, 4, 5. And the same way you can use copy paste and you can do it for the 10 subjects also. And variable name will be S1, S2. Any name could be there for the variable. But I've taken subject 1, S1, S2, S3 like this. And you can go till any long you want. Like S10 also you can go. Now I'm making a variable named total. You can give any name, sum, m, t, anything you can give, but I've given a full name total. Total is equal to S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5, means whatever number we have input here will go to total. And I have made a new variable AVE for average. You can give any name, of course, equals total divided by 5. How to calculate average? The formula for getting average is divide the total by the number of subjects. This is how you get the average. And then you can output like hi and your name, which is in nm dollar. Then you can again write you have scored, and then let us see how this program is going to work. Look, enter your name. Suppose my name is anything like Kunal. Enter your marks, this much, this much, this much, this much, and this much. So hi Kunal, you have scored this much, average is this. Why there is no gap between this and this? Because I have not given. So what you need to do, you need to give one space here. And next time when this will work, then it will show you in a proper way. Okay, like any name, Sonu, Monu, कुछ भी डाल सकते हो. Any marks you just for testing. Hi Sonu, you have scored some 331 and average this. So see how good this program is working. So this is one way of making this program. But what in case if lot of numbers has to be input, like 10, 20, 100,000, then if you'll go for making program in this way, then we'll have to make a lot of variables. We'll have to keep account of all the variables and all. So there is a short way also of making this. In this way that I'm going to demonstrate, there will use for loop. So if you haven't cleared the for loop yet, you said better do it. So how we are going to do, we are going to make some change. For A equals 1 to, if you have to input marks of 10 subjects, then 10. If you have to input for 20 subjects, then 20, or like this you can go. Okay. Before this, let us make a variable. Let us remove this total, because like sm for sum equals 0. Right now it is 0. Now what we will do, sm equals sm plus, before this we need to input marks. Just this much is enough. In any variable like m,
Now sm is equal to sm plus m. Next, see the magic of this. Now average total is going to be stored in sm. Just change this variable sm. Okay. Now, first of all, we'll do what? We'll first test this program, we'll run this program, and then we'll, if you have kept the variable name total, then total. Otherwise, sm is the variable name, so we'll have to give sm. Otherwise, we'll not display the proper result. Now run this. So enter name, marks, enter marks. Now this is, now here loop is working, and 10 times it will ask marks, and every time what is happening? Let us see. Every time what is happening, it's taking the marks, like I have entered 45. It went to m, and then sm is equal to sm plus m, means what? Sm's existing value, which is right now 0, plus m, which is 45. So the new value of sm became 45. In round 2, it again asked for the marks 67. Then what has happened? The new value of m became 67, और m का पुराना वैल्यू खत्म हो गया. वेरिएबल को हम वैरी कर रहे हैं, ये रीयूज हो रहा है, बार बार वही हो रहा है, पुराना वैल्यू उसमें से हटते चला जा रहा है. तो 67 है. अब sm का नया वैल्यू क्या हो जाएगा? sm का पुराना वैल्यू जो कि 45 हुआ था प्लस 67. तो इन दो नंबरों का सम sm में आ गया. फिर तीसरा राउंड में क्या हुआ है कि फिर हमने जो भी नंबर डाला 33, वो m का नया वैल्यू हो गया. फिर 45 प्लस 67 का जो सम था प्लस 33 भी इसमें जुड़ गया, और इस तरह से ये हमारा पूरा लूप चला 10 बार ये नंबर मांगा, और हर एक बार सम में एक एक बढ़ रहा है. ये सम समझ लो एक बाल्टी की तरह है. उसमें शुरू में मैंने 45 पॉइंट्स मान लो डाल दिए हमने, एक एक का कॉइन्स 45 डाल दिया. फिर उसी बाल्टी में दूसरे राउंड में मैंने 67 कॉइन्स डाले, फिर मैंने 33 कॉइन्स डाले. तो ऑल टुगेदर कितना हो गया? तो जो भी हो रहा है, लेट अस कैलकुलेट इट. लाइक 45 हमने डाला, फिर 67 डाला, फिर 33 डाला, तो ये 3 बार आते आते 145 हो गया. फिर चौथी बार हमने डाला इसमें क्या? 23. फिर हमने क्या डाला? 78 कॉइन्स. ऐसे कॉइन्स की तरह समझिए कि कैसे ये काम कर रहा है. ये इसे, इस वेरिएबल को sm जिस प्रकार यहाँ यूज हो रहा है, sm को एक्यूमुलेटर वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट कर रहा है, जमा कर रहा है. जो भी चीज हम डाल रहे हैं वो sm में ही जा रहा है, और इस तरह से वो एक्यूमुलेट होते चला जा रहा है, और इसीलिए उसका नाम एक्यूमुलेटर भी, उस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं. और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने वहां डाला है, वैसे वैसे जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 564 सम आ रहा है. और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना था? 10 करना था. यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, तो उसको 10 कर दीजिए. तो ये थोड़ा सा, चूंकि 5 से डिवाइड हो गया है वो, बाय मिस्टेक वी डिडंट took proper care, but now we saw that, we found that there was some mistake. Now it will work in a proper way. So again, if you are doing the same thing, in place of name also I have inserted what? Any number. So no दिक्कत, वो नाम की जगह 45 डिस्प्ले करेगा. हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि वो नाम है तो नाम ही डालना है. हम वहां पर नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नंबर को अगर हम नाम की जगह डाल रहे हैं तो वो एज ए नेम ही वो होता है. जैसे हाई 45, 45 को एज ए नेम ले लिया. You have scored 488 and average is 48. एवरेज हमारा 48 मार्क्स आया है. हर एक सब्जेक्ट का एवरेज अगर निकाला जाए तो 45 आया. तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम को बना सकते हैं. यहाँ पर आपको सीखना क्या है? सीखना यह है कि देखिए फॉर लूप का कितना सुंदर इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, और बाकी इनपुट आउटपुट चीजों का भी. इसको और बेहतर हम बना सकते हैं. देखिए कैसे. इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 2, ऐसे आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक ए लिख दीजिए. इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्रिंट लिखना पड़ेगा. प्रिंट इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ए, और फिर इनपुट एम, ऐसे लिखना पड़ेगा. अब देखिए किस तरह से काम होगा. इंटर नेम एबीसी कुछ भी, सब्जेक्ट 1,
उसका मार्क्स डालिए, फिर सब्जेक्ट 2 फिर उसका मार्क्स डालिए, फिर सब्जेक्ट 3, और इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स का मार्क डाला। लूप का सही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और अब देखिए, hi ABC, you have scored this and your average is this. So you can make any kind of such change in the program, and I hope you have understood this. And if you have not understood, then please watch video related to for loop first of all, and then make the point clear regarding the for loop. And after that, you see this program, and if even though you need to practice it, and then this will be clear. Now we'll see another program. अब हमारे सामने है एक और प्रोग्राम जिसमें हमें करना क्या है कि प्रिंट फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस 11, 17, 23, इसके बाद आगे क्या होगा ये हमें 10 तक ले जाना, 10 स्टेप तक ले जाना है। तो इस तरह का प्रोग्राम, सीरीज वाला प्रोग्राम, हमेशा याद रखिए कि वो फॉर लूप से ही बनेगा। अब फॉर लूप से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन है या किस तरह से ये सीरीज बढ़ रहा है, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो 17 में से 11 को माइनस करके देखते हैं, 6 आएगा हमारा। तो फिर 17 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो हमें ये तो कम से कम पता चल गया थोड़ा सा स्टडी करने के बाद कि इसमें 6 6 6 ऐसे जोड़ा जा रहा है, तब ये सीरीज तैयार हो रहा है। तो जब ये चीज हमारे दिमाग में आ गया है तो फिर हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक नाम m नाम का एक नॉर्मल कोई भी वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू हमने किया 11 क्यों किया? क्योंकि 11 उस सीरीज का पहला टर्म है। फिर चूंकि इसे हमें 10 बार चलाना है तो हमने एक लूप लगाया 1 to 10, क्योंकि हमें इसे 10 बार चलाना है। उसके बाद हमने प्रिंट किया m का वैल्यू जो कि 11 था, वो 11 प्रिंट हो जाएगा। और फिर m = m + 6, m में हम और 6 जोड़ दे रहे हैं तो अगला टर्म तैयार हो जाएगा। 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17, 17 में फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 23, और उस तरह से आगे बढ़ेगा। और इस तरह से हमारा सीरीज प्रिंट होगा। लेट अस टू गेट द आउटपुट। देखिए 11, 17, 23, फिर 29, फिर 35, फिर 41, और इस तरह से आपका ये 10 तक जा रहा है। आप इसे 100 तक चलाना चाहते हैं या जहां तक भी चलाना चाहते हैं, यहाँ पर चेंज करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। अब इसमें और बेहतर आउटपुट अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, टर्म ए, ठीक है, या और बेहतर करिए। अब आप देखिए कि ये किस तरह से काम करेगा। सिर्फ इतना ही परिवर्तन कर देने से बहुत बेहतर हो जाएगा। टर्म 1 11, टर्म 2 17, टर्म 3 23। कैसे आ रहा है ये टर्म? एक मैसेज की तरह है, ये आ रहा है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, फिर ए लिख रहा हूँ। ए लिखने से क्या हो रहा है कि ए का जो वैल्यू है, क्योंकि वो लूप वेरिएबल है तो ए का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा। तो वही यहाँ पे आपको सामने आ रहा है कि ए का वैल्यू है ये टर्म 1, वो 11 है, वो m का वैल्यू है। फिर m बदल रहा है, a भी बदल रहा है साथ ही साथ, और इस तरह से हमारा ये सीरीज प्रिंट हो रहा है। So I hope this program is also clear to you, and if not, then the same way you can practice, you can watch it again, and you can make this program better for you. So now we'll see another program. Now we have one more program. Here you can see print first 10 terms of series this. एक नया सीरीज है ये। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ प्लस भी किया हुआ है, यानी कि इस सीरीज का 10 टर्म्स तो हमें दिखलाना ही है, साथ में उस सीरीज के टर्म्स को सम भी करना, जोड़ना भी है। तो ये कैसे होगा? तो ये भी फॉर लूप से ही होगा। आप ध्यान से समझिए इसे। पहले तो हमें इस सीरीज का पहला टर्म क्या है, 7, वो देख लिया कि क्या होगा। फिर हमने ये पता लगाया कि कितना का डिफरेंस है सभी टर्म्स में, तो पता लगाया तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हमें चूंकि जोड़ना भी है, इसलिए सम करने के लिए हमने एक एक्यूमुलेटर वेरिएबल लिया है s, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। अब देखिए कि क्या हो रहा है। लूप चल रहा है 10 टाइम्स, लिखा m का वैल्यू जो भी है 7, फिर s = s + m, m का जो भी वैल्यू है 7, s का तो भी 0 है तो 0 + 7। वो अभी समझिए कि वो एक्यूमुलेटर जो है, वो बाल्टी जो है, वो कंटेनर जो है, वो खाली था, 0 था। अब उसमें 7 हमने डाल दिया, 7 कॉइन्स आपने उसमें डाल दिया, या 7 कॉइन्स या 7 पेबल्स और 7 एनीथिंग, ठीक है। फिर m + 4, उसमें 7 जुड़ गया, तो 7 जुड़ गया। तो आप पहले इसको रन करा लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। आप देखिए जब ये रन करेगा तो देखिए 7 है, 7 के बाद फिर उसमें 4 जोड़ा गया, 4 is added, then it became 11। तो 11 वो प्रिंट किया। फिर 7 + 11 जो भी सम होना चाहिए था 18, वो उसमें चला गया।
फिर ऊपर गया, उसमें फिर 4 जुड़ गया, तो 11 + 4 15, फिर उसको प्रिंट किया, फिर उसी एक्यूमुलेटर में SM में 15 भी डाला, उसके बाद 19, फिर 23, इस तरह से वो उसमें जमा भी हो रहा है, यानी सम भी हो रहा है, एक्यूमुलेट भी हो रहा है। इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर में जोड़ा भी है, देखिए 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 39, 43, ये जो भी टर्म्स है हमारे, उन सब का सम हो रहा है 250, और वही 250। जस्ट आई शो यू व्हाई आई शो यू दिस कैलकुलेटर, जस्ट टू वेरीफाई दैट वेदर दिस सम इज ओके और नॉट। तो ये ओके ही होगा हर हाल में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सीरीज का भी सम हासिल किया, और आप अलग अलग सीरीज को ट्राई कर सकते हैं, सम के जगह प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। You have got some problems in your book, you can find it and you can resolve it. So thank you, dear students. I hope this program is also getting clear to you. See you one more program, let us try to solve. अब हमारे सामने एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग अभी समझेंगे। इस प्रोग्राम कहता है कि 10 बार प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 10 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। 10 रेक्टेंगल्स का, 10 अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं, उनका अलग अलग लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। तो 10 अलग अलग रेक्टेंगल्स का आपको पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो चूंकि हमें 10 बार ये काम करना है, एक ही काम को करना है, इसलिए हमें सारा काम को एक लूप में हमने डाल दिया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि प्रिंट इनपुट रेक्टेंगल 1, पहला रेक्टेंगल के लिए डालिए आई। यहाँ पर हमारा रूट वेरिएबल आई है, आई का वैल्यू 1 2 3 4 जाएगा। फिर लेंथ ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं। फिर एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से, L × B। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 × L + B। और फिर इस तरह से हम लोग एक प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा मैसेज दिखा रहे हैं। इसको रन कराते हैं, 10 बार ये रन करेगा। देखिए इनपुट फॉर रेक्टेंगल 1, 1 किस वजह से आ रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो, जो कि फर्स्ट राउंड में 1 है। लेंथ डाले हम 78, फिर डाले 63 ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 4914 और पेरीमीटर है 282। फिर ये पूछ रहा है, ये लूप फिर दूसरी बार चला, अब आई का वैल्यू 2 हो चुका है। फिर लेंथ डालिए 41 और 23। तो ये अब आपको दिखला रहा है उसका एरिया और उसका पेरीमीटर। अब 3 के लिए पूछ रहा है, 4 3 डालिए, तो ये उसका दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये हो रहा है। अगर आपको पूरा 10 नहीं चाहिए, बीच में ही रोकना है, तो कंट्रोल के साथ ब्रेक दबा दीजिए, तो बीच में भी आप रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन इफ यू आर नॉट गेटिंग, प्लीज प्रैक्टिस एंड ओनली देन यू कैन लर्न। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।